ठीक है, ओके, स्टार्ट करिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. So first of all, tell me or ask the question from the last lecture. If you have any question, you can ask at the moment. पढ़ कर आए आप लोग? कुछ पढ़ा है? जी, कोई सवाल है किसी के पास? सब चीजें क्लियर है? क्लैरिटी है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? फिर आगे चलते हैं हम लोग। यस मैम। जी, है कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें फिर। यस मैम। ठीक है, you can see on the screen application of X-rays. I think we must not put more time on this because everything is here in 5 points. The applications, we have discussed in the history also. It is used in the medicine as diagnostic purpose, specifically for diagnosis and for the treatment. So nowadays, the treatment is done with knife X-ray or very thin X-rays. Okay, so you can see in this the techniques for the scanning of the body parts and the disease part in the body under the name of CT or CAT scan. Okay, computerized tomography or computerized axial tomography. These are terms that are used to determine the X-rays of the body in different 3D because our body is 3D and the structures can be determined in the form of 2D. Various 2D structures are mapped through the X-rays and in different positions, and the whole body can be evaluated in this way by the X-rays. And it can easily locate the fractures in the body, in the tumor in the body, the cancerous cells, and even in the lungs, the emphysema or the tuberculosis. It can be determined by the X-ray spectroscopy. Okay. Under the sorry. As far as the treatment is concerned by the X-rays, it is very common, that is radiation therapy. You know the radiation therapy, and specifically it is used to treat the cancer cells under the radiation. So one thing is very common, that the X-rays can pass through the soft tissues very easily, and they bring a great change in the body structure and the things. You can see that they are used for the treatment and to burn the cancerous cells. So the exposure of these X-rays is very dangerous for the health. So that's why you can see that in the radiation area, precautions are taken over there, and the person who is doing X-ray or who is standing in front of the X-ray machine, he is fully protected from the dress, which is through which the X-rays will not pass, and he takes very much care. Okay, so too much exposure to the X-rays is not advisable, specifically in the cases when the women are pregnant, they are carrying their babies. So in that position, as a pharmacist, you must know what care we have to take in this situation. So excess exposure to X-ray is always avoided in these conditions. Okay? Secondly, you can see the forensic application. As far as forensic application is concerned, you can see here on the computer screens, the things are common after scanning, and this is usually used on the airports and different mall. At mall, the things can be exposed on the screen because the X-rays can pass very easily through the ladders, as said in the beginning, that X-rays can pass through the soft material, so it can be so the weapons inside the suitcase or
Similarly, the similar things like weapons, if they are there in the bags, they can be detected by the X-ray scanner. Okay. You can see here one scanner, CTX machine are made. Yeah, example is given over there. CTX machines are made by companies such as GE Envision. This is the very well-known company which provide these CT scanners or CTX machine, which are usually used in the forensic area. So we are talking about the application. So industrial application is also very important. In industry, it is very efficiently used to determine the breaking part of the machines, especially. Machines are very sophisticated, and their inner parts, they can not easily be determined by any other technique. So the X-rays are used to determine the inner breakages in the machine so that they can easily be maintained, like in engines or etc. Other things more important is that the X-rays can be precisely used in the microscope as a microscopic machine. So with the help of this property of the X-ray, because they can be used precisely, because in the very beginning we have learned that when X-rays are produced, they are discrete and they are separated from each other. A single X-ray, they can easily be separated from the beam. When it is produced after attacking to the target material, the X-rays are produced and they are separated from each other. So it means we can use the single beam of the X-ray very efficiently. So these at the microscopic level, these X-rays can be used to form these chips, small chips, silicon chips. They can easily be produced, and they can easily be inserted in the other machines like wristwatch, like mobile, and small micro scale products. In the small micro scale products, the smallest tools can be used, smallest what you can say, smallest parts of the machine can be easily inserted or easily produced by these X-rays. Okay. Now, in scientific research, it is very important because we are concerned mostly about this. We are studying this. The structure of the molecules and atoms or can easily be determined by the use of these X-rays. X-ray, because the structure of crystals can easily be determined uh, depending upon the phenomena of scattering and diffraction. Okay, as a result of this, a shadow is formed which shows the crystalline structure, interior pattern of the structure, the arrangement of the atoms in the molecule in the crystalline formation, how the crystals are formed, and how the atoms are packed together to form a crystal. Okay, the arrangement of the atoms in the crystals, orders of the atoms in the crystal, they will in a specific pattern, due to which the crystalline structure is obtained in different forms, because we have different crystalline structures, so they can easily be determined by the X-ray, and the name is X-ray crystallography. Okay, and you can see the name of the scientist over here. The structure of DNA is also determined, which becomes very fruitful in various scientific researches. The DNA structure, it is determined in 1950 by the Rosalind Franklin. Okay. Another point is astronomy. In astronomy, the help can also be taken from X-rays to determine and to forecast the astronomical aspects. That is the satellite dish antennas, and they are easily be X-rays are easily be used to determine or to forecast or to catch the
rays for radio waves like radio telescopes. These are formed by the X-ray. X-rays. So X-rays in the last line you can see the X-rays with telescopes located in space instead. Sorry. हाँ, यहाँ से देखिएगा. X-rays also travel through space and we can study them in a similar way with telescopes tuned to recognize their particular frequency. This is important point over here. How satellites or dish antennas can be operated and how in the space we can gauge the process of satellite, etc. By the use of their particular frequency. Okay. So these points are all about the application of X-rays, and we are mainly concerned with the X-ray in scientific research and in medicine. And you have seen that in medicine it is used for treatment and diagnostic, and in scientific research it is used for the determination of crystalline structure. So we come to the crystalline structure, the determination of crystalline structure. The determination of crystalline structure is under the name of X-ray crystallography. And in the last lecture, in the very beginning we have learned that the Roentgen was the scientist who discovered X-rays accidentally. So the name of Roentgen is very important in the field of crystallography. Okay. And he got the Nobel Prize in 1901. And other name in this field is Max von Laue. Who determined the crystalline structure in the form of spots, that is, that are known as Laue spots, and which give a particular pattern of the arrangement of the atoms in the molecule in the structure, in the crystalline structure. So he also got on the phenomena of diffraction. So he also got Nobel Prize on this discovery in 1914. So how these X-rays are used to determine the structure? It depends upon the property of X-rays, very important thing. We know that X-rays have the wavelength similar to the atom. So this similarity make it useful for the determination of crystal structure. How? We know that crystals are in a specific, crystals have a specific arrangement of atoms. They have different crystalline structures. कौन से होते हैं? आपके डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? आपने पढ़े हुए हैं. रोम्बिक स्ट्रक्चर होगा, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है. आपके वो 7 सिस्टम है क्रिस्टलाइन के. याद है किसी को? बहुत पहले पढ़ा होगा आपने. कोई शेयर करेगा? नाम याद आ रहे हैं? अभी मैंने 2-3 नाम लिए हैं. इसमें नहीं है. रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, इस टाइप के क्यूबिकल सिस्टम का. हाँ, 7 क्रिस्टल्स है ना, 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. और इनके क्रिस्टल्स के जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स होते हैं, वहाँ जहाँ से इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, क्यूबिक है तो उसके पास ABC होगा डायमेंशंस, राइट. और यानी कि ABC डायमेंशंस हैं. और जहाँ से इनकी ज्वाइनिंग होती है एजेस की, वो कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स. ठीक है ना. ये वैसी बात आ गई इसमें एक, बाय द वे, जब आप इसको सिर्फ, हम तो क्रिस्टलोग्राफी वैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके बैक में ये नॉलेज होनी चाहिए सारी कि होता क्या है क्रिस्टल. ठीक है ना. तो और क्रिस्टल ऐसे ग्रो नहीं करता. When we produce a new compound, it is in the form of, it is not at the one go appear in the form of crystal. Crystal is grown in a particular condition. ठीक है. उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है. आप कोई अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं तो वो मॉलिक्यूल पहले एक पाउडर फॉर्म में होगा, या वो उसका कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल नहीं होगा. क्रिस्टल्स बनाने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है सिंथेसिस के अंदर, जिसमें पर्टिकुलर ऑर्डर पे क्रिस्टल ग्रो करता है. अगर वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा, राइट. तो पहले एक क्रिस्टल को ग्रो करना होता है. तो वो एक अलग टेक्निक है जो आप कभी सिंथेसिस में पढ़िएगा. ठीक है.
तो आपके जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपका एक जो क्रिस्टल है उसको यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है ना, एक यूनिट सेल है। और उसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स को डिटरमिन करने के लिए उसके पास उसके 14 ब्रेविस लेटिस ब्रेविस होते हैं। जो लेटिस स्ट्रक्चर्स हैं उसके पॉइंट्स 14 ब्राविस लेटिस के नाम से है वो, ये कभी देख लीजिएगा किताबों में निकाल के कि ब्राविस लेटिस क्या होते हैं। ये 14 होते हैं, ठीक है। 7 क्रिस्टल है और 14 ब्राविस लेटिस पॉइंट है, ठीक है। ये नहीं था इसमें तो नहीं है, लेकिन वैसे एक बात आ गई जहन में तो फिर मैंने आपको बता दिया। तो एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन पैटर्न है इट इज बेस्ड अपॉन डाइफ्रैक्शन। और डाइफ्रैक्शन क्या होती है, क्योंकि हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी कि कैसे ट्रेवल करती है एक्सरे, और अगर इनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस हो तो क्या हो जाता है, तो उसी पे बेस करती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन। तो बताएं कि क्या होती है ये, अभी मेरा क्वेश्चन क्या था? डिफ्रैक्शन पूछा मैम आपने, बेंडिंग हो रही होती है ना मैम इसमें। हाँ, डाइफ्रैक्शन क्या होती है, डाइफ्रैक्शन क्या होती है, कभी तो पढ़ा हमने। हाँ, प्रिज्म की एग्जांपल दी थी मैम प्रिज्म में से जो अब उसमें आपने, लाइट अगर वगैरह आप पास पर्टिकुलर होती थी वो डेफिनेशन में बेंडिंग। जाए हैं तो जी जी बोलिए। हाँ, लाइट की बीम व्हेन लाइट पास थ्रू अ मोनोक्रोमैटिक प्रिज्म, सोर्स जो मैम और पास हो रही होती आपने है वैसे प्रिज्म पढ़ा होगा से कि और फिर उसमें बेंडिंग का फिनोमेना शो होता है, वो डिफ्रैक्शन होता है, जो स्प्लिटिंग हो रही होती है। हाँ, वो उसके अपने कंपोनेंट में सेपरेट हो जाती है, दैट इज नोन एज डाइफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना है। वैसे आप देखिए जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी बॉडी, एनी सरफेस, व्हाट हैपेंस, कितने फिनोमेना वहां पे होते हैं, चलिए क्विकली बताइए, कितने फिनोमेना होते हैं वहां पे, क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये सारी चीजें आएंगी बीच में, क्योंकि ये जो आप हम दो इक्वेशंस करेंगे ना, दो लॉज के, उसमें ये फिनोमेना आते हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, और डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये 3 फिनोमेना होते हैं, राइट, बेसिकली। और आपकी जो आपकी एक्सरेज है वो इन्हीं फिनोमेना पर बेस करते हुए उसकी जो सरफेस से टकराने के बाद जो उसमें चेंज आता है उसी पर बेस करते हुए आपकी प्रॉपर्टीज आप उसी पे स्टडी करते हैं, और वो फिर आपको एक्सरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिटरमिन करती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। अच्छा, एक्सरे को हम किस लिए यूज कर रहे हैं? एक्सरे इज यूज टू डिटरमिन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मोस्टली प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीमर्स, इनके और हम इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को 2D स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। यानी कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत सारे हम देख लेते हैं। अब देखिएगा अगर आपने एक्सरे ये करवाया हो, सीटी स्कैन किया हो, देखा हो कभी, या पेट स्कैन देखा हो, तो उसमें एक पिक्चर नहीं होती है, देयर आर सो मेनी पिक्चर्स। It means through different angles the pictures are taken, because our body is a 3D model, but the picture is in a 2 dimension. तो उसकी पिक्चर ली जाती है वो 2 डायमेंशन में, पिक्चर 3 डायमेंशन में नहीं हो सकती है। तो इट मीन्स एक्सरे इज यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशंस ऑफ अ 3D मॉडल, and we have got a lot of pictures of this, and after assimilating all these pictures we can conclude the reality what is happening over there, ठीक है ना, what is thing over there। तो आप तमाम को मिलाकर फिर एक कंक्लूजन जो एक्सपर्ट होते हैं उसको निकालते हैं कि ये यहाँ पे है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में हर एस्पेक्ट से एक साथ 3D आपकी पिक्चर नहीं जनरेट हो सकती, उसको आप 2D मॉडल में पिक्चर लेते हैं। तो जो चीज़ आगे पीछे छुपी हुई है कि राइट लेफ्ट और लेफ्ट टॉप, अप एंड डाउन, फ्रंट बैक, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, मतलब इन तरह से डायरेक्शन में करके तो आपकी 3D मॉडल, पूरा बॉडी का 3D मॉडल है, या मॉलिक्यूल के जितने भी स्पेस के अंदर 3D मॉडल्स हैं, तो उनको आप 2D करके ही पिक्चर लेते हैं, और उसके बाद उन पिक्चर को डिफरेंट एंगल से लेने के बाद आप पूरा स्ट्रक्चर उसका डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरे इस तरह से यूजफुल है। तो बात हो रही थी कि ये किस लिए यूज होती है, कि इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, स्पेसिफिकली द साइंस व्हिच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज भी हमें मालूम होती है, ठीक है, थ्रू द फिनोमेना ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन, ओके।
one more thing is important. Why we use it is useful for the chemist when they are preparing a molecule to determine the structure of molecule. The chemist can use this tool very easily. Another reason why it is a part of science. X-ray को हमने science में क्यों रखा गया है? What is the scientific knowledge? What is the scientific application of this X-ray? The reason for this is the economic ground. Due to economic purpose, economic importance, it is the part of science. Why? Because all the molecule in scientific investigation, yes? Ma'am, it's used in आवाज़ नहीं आ रही क्या? hospitals. आवाज आ रही है मैम? बेटा आपकी बात मुझे नहीं आ रही है. अच्छा देखिए दो रीजन है. एक तो है कि केमिस्ट इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट जो है वो पूरा स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं, राइट. और दूसरा इसका इकोनॉमिक रीजन है. इकोनॉमिक रीजन में आप ये सारी चीज़ों को डाल सकते हैं. ये जो हमने अभी एप्लीकेशन में देखी थी कि आप उनके फॉरेंसिक में यूज़ किए जा रहे हैं उनको, या उनको स्कैनिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं द मॉल एंड द अदर areas of the crowdy areas where the X-rays are used very easily to determine the vehicles and the weapons which are inside the bags or etc. Okay. इससे एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये भी हिस्ट्री में है कि स्मगलिंग जो है वो उसमें देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ स्मगलिंग ऑफ द थिंग्स. तो वो गोली जो थे हार्ड चीज़ें यानी कि जो आपके बुलेट्स होती हैं ये स्मगल करने के लिए इनसाइड बॉडी में करवा लेते थे, ठीक है, बॉडी के इनसाइड, इसके लिए नीचे. जी जी टाइम लिमिट खत्म होने वाली है Zoom की. इसको रीस्टार्ट कीजिएगा ना, जी जी रीस्टार्ट कीजिएगा, ठीक है. अच्छा तो ये जो आपकी एज ए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज यूज. एक्सरे जो है वो आपका साइंटिफिक और इकोनॉमिक पॉइंट दोनों से यूजफुल है, ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि टाइम खत्म हो जाएगा तो इसको आप रीस्टार्ट कीजिएगा. ठीक है मैम. ठीक है. जी अच्छा मैम. अब यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे को देखना पड़ेगी कि व्हेन एक्सरे पास थ्रू अ होल. खास पे एक बार ये देख लें, एक पॉइंट है ये. व्हेन एक्सरे पास थ्रू अ होल इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है. And when it strikes with the substance and if any interference is over there in its way, it also changes direction. अब दो चीज़ होगी. हमने कहा होल से पास हो रही है तो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो डायरेक्शन फिनोमेना में जा रही है, ठीक है. और होल की बात कहाँ से आ गई? बिकॉज वी नो दैट द एटम्स आर अरेंज इन सीरीज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल नेचर दे आर अरेंज इन द सीरीज close together and between two atoms there is a hole. एक होल होगा. जब एक्सरे वहां से पास होगी होल से गुजरने के बाद इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. अब इसका मतलब है कि बीच में उसके अगर कोई इंटरफेरेंस आ जाती है तो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी. जब डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसकी जो एम्पलीट्यूड और भी हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, राइट. तो इट मीन्स दो तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, इंटरफेरेंस की यूज हो रही है. एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस हो रही है यानी कि व्हेन द एक्स-रे स्ट्राइक्स टू द सरफेस it reflected back, it reflected in the other direction, in the other way side, but after interacting with the interference in the way it will change its direction. अब चेंज इन डायरेक्शन जो है वो दो तरह से होगा. आपको ये डायग्राम ऊपर नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये लेफ्ट साइड पे जो दो वेव्स नजर आ रही हैं. अब देखिए because the rays are moving in the wave form, so they have the crest and the trough. Ab here we are considering two waves together. For the study of the Bragg's law, two waves are studied together. हमें दो वेव्स की बात करनी क्योंकि दो वेव्स हम लेंगे और दो सरफेस से वो गुजरेंगी तो आपस में उनका इंटरेक्शन फिनोमेना होगा. When the two waves interact together, they will change their position, and if the position is changed in a constructive way, that is useful for the
X-ray crystallography to determine the structure. But if the interference is destructive, it is useless. So अब हम इस concept को देखते हैं कि what is interference and what is constructive interference, what is destructive interference. Here you can see in the picture, in the diagram on the left side, that the two waves are passing through some surface, and you can see here the trough of one wave and the trough of the second wave are in a similar position. You can see in the similar position. आप ये देखें, ये आपका यानी कि एक ही एंगल पे आ रहा है. Pen is not working. ये थोड़ी लाइन करिए, ये वाला, ये जो ट्रफ, एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ बिल्कुल एक ही एंगल में आ रहे हैं, एक बिल्कुल मैच करे दूसरे के. इस तरह से क्रस्ट की तरफ चले जाए तो ये भी दूसरे से मैच कर रहा है. भाई ठीक है. अब दोनों वेव जो है वो थ्रू आउट ऐसे पास हो रही हैं, राइट, यानी जिनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम आ रहा है दोनों का. तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? द रिजल्टेंट इफेक्ट विल बी द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. यानी अगर ये दो वेव्स किसी भी होल से पास करेंगी तो जो निकलने के बाद उसकी पोजीशन, इस जो थर्ड आपको वेव नजर आ रही है इसकी तरह की होगी, यानी उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा और वो अभी तक सेम ही होगा. यानी आप देखिए कि उसका भी वो सेम ही है. तीनों वेव का इसको क्लियर करके दोबारा इसको करती, ठीक है. ये इस तरह से फर्स्ट भी अब अच्छी तरह करिएगा. तो अगर वेव्स का, अब ये दो जो ऊपर की वेव हैं दोनों, ये आपकी दो वेव हैं जो हमने सभी के लिए ली हुई हैं, और उस पर पास होने के बाद किसी भी होल से पास होने के बाद, किसी भी सरफेस से पास होने के बाद जो उनका रिजल्टेंट बिहेवियर है वो ये वाला है, नीचे वाला कर्व वाला, ठीक है. और उसके जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा हुआ है, ट्रफ भी बढ़ा हुआ है ऊपर को और ट्रफ भी बढ़ा हुआ है नीचे को, ठीक है. तो अगर थ्रू आउट ये जा रही आगे तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? Come to the next picture of the waves at lower side. Here, this one. You can see here the trough and the crust, they are opposite to each other. Opposite है ना, एक दूसरे के opposite है. ये क्या होगा कि इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो नल इफेक्ट होगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में. यहाँ पे क्या था कि जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हो रही थी उसका क्रस्ट एंड ट्रफ ज्यादा बढ़ गया था, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, ठीक है. यहाँ पे उनके एम्पलीट्यूड और क्रस्ट और ट्रफ जो है वो एक दूसरे की बिल्कुल सीध में है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो इट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी. आगे चले, आगे और पिक्चर्स में आपको और ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा. सो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझना बहुत जरूरी है. जी, अब यहाँ पे देखिएगा इस पिक्चर में, देखिए दोनों वेव का हमने क्रस्ट और ट्रफ जो है वो सिमिलर है. तो उससे के नतीजे में जो आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही है, आप इसको राइट पे देखिएगा, ये वाली दो ये हैं, वो रिजल्टेंट क्या दे रही हैं? दे आर गिविंग अ मोर एम्पलीट्यूड हैविंग वेव, द क्रस्ट एंड ट्रफ आर इंक्रीजिंग. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है. अब जरा नीचे इस तरफ आ जाइए और देख लीजिए. ये सेकंड रेड, ठीक है. अब यहाँ देखें, ये नो नीचे आइए, उसके बाद में देखेंगे, पहले नीचे आइए. नहीं
नीचे से मुराद ये है कि आप यानी ऊपर की तरफ लेके जाएं, अभी नहीं, ऊपर जाएं, ऊपर जाइए। हाँ, ये वाली, दिस वन, ये रेड वाली, रेड वाली। अब देखिए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यू कैन सी हियर द क्रस्ट, the crust of one joins with the crust of the other. इसी तरह से the crust of one is in opposite direction of the crust of the other. So as a result, these waves are joining and the effect is null. इसमें से आपको कोई पिक्चर इसकी नहीं बनेगी। ये बिल्कुल वही फिनोमेना है जो आप आई से पिक्चर कैसे बनती है, ठीक है? आई से पिक्चर कैसे बनती है, आप आपने कैमरा है ना, कैमरे का जो फिनोमेना है वो आपकी आई का फिनोमेना है। हम चीजों को कैसे देखते हैं, तो बिल्कुल यही वाली चीज है कि अगर आपकी जो रेस निकल ऑब्जेक्ट से, उनके टेल और हेड से, अगर वो आगे जाके आपके रेटिना के पीछे एक पिक्चर बनाते हैं, अगर वो सही डायरेक्शन में अगर वो ज्वाइन होगी तो, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल इस तरीके से ये है कि अगर आपकी जो दो रेज हैं वो अगर अपनी ट्रैक को चेंज कर लेंगी तो वो ज्वाइन हो जाएगी कहीं ना कहीं। अगर वो सिमिलर ट्रैक पे चलते रहेंगे तो वो दोनों पैरेलल चलते रहेंगे और कभी मिलेंगे नहीं दूसरे से। तो कभी ना मिलेंगे तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से पास होंगे तो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा कि आपकी जो वेव है, रिजल्टेंट वेव इट हैज मोर एम्पलीट्यूड, इट इज मोर पावरफुल। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना है, and it is used for the in the diffraction to make the picture of the substance. किसी भी सब्सटेंस, किसी भी बॉडी पार्ट को या स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए एक्स-रे की ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर specific crystals essential, and by rotating the crystal we set this passage of the X-ray so that we can get the constructive interference. Are you getting my point? क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब में होगा तो इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रॉय हो गई, हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं चाहिए वो वाला क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आप ये साउंड जो है ना, ये आवाज ही मेरी आ रही क्या? यस मैम क्लियर आवाज नहीं आ रही क्या? मैम क्लियर नहीं आवाज, मुझे तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा आप देखिएगा, ये बस वो सिग्नल का मसला, सिग्नल वीक है इस वक्त, पता नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस वक्त बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सिग्नल कैसे ठीक होंगे। कम आ रहे हैं सिग्नल थोड़े से। अच्छा अब यहाँ नीचे आके देखिएगा, जहाँ पे लिखा है डार्क एंड ब्राइट, ये ब्लू कलर में, ठीक है, ए भी आपके पास है। तो for constructive interference at the right side in the B area, you can see the constructive interference when the rays travel parallel to each other in such a way that their crust and trough are in opposite direction, in the same direction, ठीक है, एक ही तरह से हो। तो as a result we get a bright spot, mean the spot is appear over there which is visible. And the constructive interference outcome, this is the outcome of constructive interference, that due to these rays, when the picture is formed, it is bright and it is shown very easily. But otherwise, in this case, in A, where the amplitude and crust are in opposite direction, the resultant waves are joined together in such a way that the result is null. मैम एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या करूं आवाज के लिए? अच्छा मैम काफी डिस्टॉर्शन हो रही नहीं आ है। रही, सब कुछ रिसेप्शन, मैं बिल्कुल तन्हा कमरे में बैठी हूँ इस वक्त, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम होगा। सिग्नल्स का इशू। हाँ सिग्नल्स कम आ रहे हैं मेरे पास में, मैं डोर और बंद कर लेती हूँ। सिग्नल्स थोड़े से कम आ रहे हैं, पूरी लाइन नजर नहीं आ रही है सिग्नल की। चलिए बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये पिक्चर से आप देख समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर आप क्वेश्चन पुट अप करें ना, आप लोग क्वेश्चन बनाएं, जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
अब आ जाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है एक्सेस की, उसको हम किस तरह से क्रिस्टल पे अप्लाई करते हैं। द एटम्स इन क्रिस्टल्स इंटरैक्ट विद एक्स रेज इन सच अ वे एज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है ना, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है, इसलिए ब्रैग इक्वेशन में भी हम आते हैं। तो इंटरफेरेंस आपके ज्यादातर ये कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, ये हमने देख लिया। और अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो फिर आपकी इंटरफेरेंस वो इमेज बनेगी, उसका पिक्चर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मैम मे बी आपका कैमरा ऑन है, इस वजह से वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है। कैमरा ऑन है, लग रहा है। मेरी वीडियो जी तो मैम। नहीं आ रही ना आपके पास? आ रही है? मैम अभी Yes, शो ma'am. हो रही है वो, पहले नहीं हो रही थी लेकिन फिर हो रही है। अच्छा वो कैमरा आप वीडियो ऑफ कर दो। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं देखती हूँ। जी ये कैसे ऑन हो गया अभी कैमरा? मैम नीचे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है ना, वहाँ पे आप म्यूट कर दो उसको। हाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन वो जी तो मैम अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, और अब आवाज भी क्लियर आ रही है। हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैम पता नहीं, लेकिन अब क्लियर आ रही है आवाज भी देखो और मैंने तो वीडियो कुछ भी नहीं आ रही। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। अच्छा मैं तो अभी कुछ भी नहीं किया बेटा। अच्छा हाँ अच्छा, पता नहीं मैम, अभी तो मेरे पास वीडियो भी एकदम स्टॉप हो गई और आवाज भी वेरी क्लियर हो गई है। वेरी स्ट्रेंज। लेकिन हम जो ना EMR पढ़ रहे हैं ना, तो EMR जो है वो अपना काम दिखा रही है। अब मेरे पास से ना स्क्रीन गायब हो गई है। अच्छा स्क्रीन गायब हो गई है। अच्छा चलो, मेरे पास ना स्क्रीन गायब हो गई है, अब क्या करूँ? बाकी सबको बैक टू शो हो रही मीटिंग, है। ठीक है, आ गया, ठीक है। आप तो मेरी पिक्चर नहीं आ रही ना? मैम अभी जैसे ही आपने वो स्क्रीन ऑन की ना तो पिक्चर भी स्टार्ट हो गई। मैम आपकी वीडियो अच्छा अब अभी तक बताइए, ऑन है। नहीं अब मैम आप बताइए, बंद हो, अब बंद मैम हो आप गई? बंद हो हो रही गए। है, अब बंद हो गई। सही है, शुक्र है। हाँ शुक्र है, मैं तो बहुत रिलैक्स बैठी हुई थी। आई एम नहीं सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तो अच्छा जनाब, फिर ये हम आते हैं इसके ऊपर फिनोमेना पे। व्हाट इज द फिनोमेना ओवर देयर, ठीक है। इसके लिए देखिए, लेट्स इमेजिन अ बीम ऑफ एक्स-रे एंटरिंग अ क्रिस्टल with one of these planes of atoms oriented at an angle of theta to the incoming beam of, मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर उसको मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। to the incoming beam of monochromatic X-rays। अब मोनोक्रोमेटिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एक्स-रे आपके पास आपने प्रोड्यूस की हैं वो सारी अलग अलग डिस्क्रीट हैं, ठीक है ना। तो एक एक्स-रे आपको जो भी वहाँ पे होगी एक लैम्डा की, वो एक्स-रे आपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा ऑफ एक्स-रे लेना है आपको। और वो जब आप फॉल करेंगे इस पर एटम पर, मॉलिक्यूल पर, टू सच एक्स-रेज आर शोन हियर। आप ये डायग्राम पर आ जाइए। टू सच एक्स-रेज आर शोन हियर where the spacing between the atomic planes occurs over the distance d। यानी हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो the ray is fall upon the surface of the crystal making an angle theta and the distance between two phase is d denoted by d। यानी दो फेज के दरमियान, दो रेस के दरमियान, और दो ही आपने उसके फेज भी लिए। The two phases of the crystals, दो एटम्स की, दो रो क्रिस्टल्स की, और रे भी आपकी दो हैं, एक्स-रे भी दो हैं। When they fall on the surface of the crystal, they make an angle theta, ठीक है। तो this is ray 1 और this is ray 2। अब मैं कुछ चीजें और टच नहीं कर रही हूँ, पेन को आप इसको खुद देख लें वरना आपको गड़बड़ हो जाएगी, ठीक, मुझसे गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपका ray 1 है। ray 1 is falling on the first surface making angle theta and ray 2 is falling on the second surface making angle theta। अब थीटा जो है वो किस तरह से है, अब जरा थोड़ा सा अंदर देखें, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, चली गई आगे, और अंदर जो फिनोमेना हो रहा है, एक साथ ही दो फिनोमेना चल रहे होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम चूंकि ब्रैग्स इक्वेशन करने जा रहे हैं, बिकॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट अपॉन द ब्रैग इक्वेशन, ठीक है। एंड ब्रैग इक्वेशन, द बेसिस ऑफ ब्रैग इक्वेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ टू रेज विद द टू स्पेसेस ऑफ द मैटर्स। ये इसका फिनोमेना है। तो यहाँ पे हमने दो स्पेस लिए, दो फेजेस लिए हैं उसके, दो लाइन, दो रोज लिए एटम्स की मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर, और दो रेज इस पे फॉल कर रही हैं। अब आप जिस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अब देखें कि जो
रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें इस रे को, ठीक है, दोनों रेस को दोनों तरफ से एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो इट विल मेक एन अगेन एन एंगल विद द बेस दैट इज थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा आपको नजर आएंगे, बीच वाली लाइन में देखिएगा, नीचे वाले तो ये निकल रही है बाहर, आप बीच वाली में देखिएगा, ठीक है, तो ये 2 थीटा के इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनना शुरू हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ लैम्डा आपने यूज की है, दैट इज डिनोटेड बाय n लैम्डा, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 2a, यानी कि 2 थीटा के इक्विवेलेंट है ये, यहाँ पे 2 थीटा बन रहा है, ठीक है, यानी कि जो दो रेस को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 रेस के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 थीटा। एक और चीज हम देखते हैं कि when the second ray fall on the surface it has to travel extra, ये जो इतनी लाइन सेकेंड रे तक जाने के लिए वो कर रही है, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, लेकिन वो एक एंगल भी बना रही है पहली रे के साथ। अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखिए कि पूरा जो इसका परपेंडिकुलर है बीच में, इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो थीटा आ रहे हैं, दिस थीटा इज इक्वल टू द थीटा which is made with ray 1 from the upper surface and with ray 2 from the upper surface। upper surface के साथ जो थीटा बन रहे हैं और जो अंदर से रिफ्लेक्शन के बाद बन रहे हैं, ये दोनों थीटा, ये थीटा जो है अंदर वाला थीटा जो है वो इस थीटा के डबल है, ये 2 थीटा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ब्रैग इक्वेशन आपकी बनना शुरू हो गई है कि एक रे आपने ली है जो कि उसको आप लैम्डा का नाम दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ रेज यू कैन टेक एंड दिस इज डिनोटेड बाय n लैम्डा, ठीक है, एंड n लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2a, राइट, यानी कि 2 एंगल के इक्विवेलेंट है वो, उसका जो भी उसके साथ वो फेस के साथ एंगल बना रही है, और a इज एक्चुअली d sin थीटा। a क्या चीज है यहाँ पे, a इज d sin थीटा, व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द थीटा एंगल, और एंगल जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल जो बना रही है वो कौन सा होगा, sin थीटा होगा, ठीक है। एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर हम इसके ट्राइंगल को थीटा में लें तो ट्राइगोनोमेट्री यूज करते हुए आप यहाँ पे या तो कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा, यहाँ पे साइन थीटा क्योंकि ये परपेंडिकुलर के साथ बन रहा है, परपेंडिकुलर और ये बेस जो थीटा आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज साइन थीटा। तो आपके पास यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू d साइन थीटा, d इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेज एंड द स्पेसेस, a इज इक्वल टू d साइन थीटा और 2a इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, क्योंकि आपने 2 यहाँ पे लैम्डा ली हुई है, तो 2a इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, देयरफॉर n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इट इज क्लियर अप टू हियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, क्लियर। क्लियर हो गया? So this is a well known form of the Bragg equation and Bragg law, and which prevails in the X-ray diffraction. तो X-ray diffraction का basis जो है ये Bragg equation है या Bragg law है। According to Bragg law, n lambda is equal to 2d sin theta। ठीक है, अब हमें क्योंकि स्पेस अगर हमें मालूम करनी हो दो एटम्स के दरमियान आपकी दो रोज हैं, तो स्पेस के लिए फिर आप d को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, तो d is equal to n lambda upon 2 sin theta। So by this equation we can determine the space between two rays. So Bragg's law is useful for the determination of the spaces between the atoms in the crystalline structure. ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें? यस मैम, ठीक है। Yes, ma'am. So this law is useful for the determination of crystalline structure and the atomic spaces, कि कितने spaces हैं और कितना उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, so according we can define the Bragg's law। how we can define, नीचे ही लाइन, अभी नहीं ऊपर जाइए, अभी नीचे मत आइए, ऊपर जाइए, अभी लॉ को देखें। d is equal to n lambda upon 2 sin theta। इससे पहले Bragg law क्या कह रहा है आपको? तो Bragg law is lambda of the X-rays going into the crystal, and we can measure the angle theta of the diffracted X-rays coming out of the crystal. Then we know the spacing, that is known as d spacing between the atomic planes। ठीक है, so by this equation we can determine the spaces between the atomic planes, and n may be any
appropriate value like 1, 2, 3, etc. And theta value can be determined by the goniometer. ठीक है? So we can determine the unit structure, unit cell by determining the crystal structure. Now, come to how many X-ray diffraction methods are there. ये ब्रैग्स लॉ समझ में आ गया आपको, ठीक है? There are 3 methods of diffraction. Number 1 is Bond law. ये आपको पिक्टोग्राम में नजर आ रहा है. Rotating crystal method and powder method. मेथड में आप क्रिस्टल को पर्टिकुलर क्रिस्टल को यूज करेंगे, और पाउडर मेथड का मतलब ये है कि आप क्रिस्टल नहीं बनाएंगे बल्कि पाउडर एज इट इज यूज कर लेंगे. ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स हैं, इसको हम बारी बारी देखते हैं. बाय दिस वॉन लॉ मेथड, दिस टेल यू ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल पॉलीक्रोमेटिक बीम. ये इसमें पॉइंट्स आएंगे कि पॉलीक्रोमेटिक बीम होगी और इसमें फिक्स्ड एंगल होगा और एक ही थीटा पे काम करेंगे. अब रोटेटिंग क्रिस्टल में क्या होगा कि लैटिस कांस्टेंट यहाँ पे होगा, सिंगल क्रिस्टल आप लेंगे यहाँ पे भी, और मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे यूज होगी, जबकि वॉन लॉ में आपने पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज की है. ठीक है, और यहाँ पर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है. और वेरिएबल एंगल, यहाँ पे एंगल भी वेरिएबल होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी. यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है लेकिन एंगल फिक्स है. तो आप लाइट की बेसिस पर जो आप लैम्डा यूज करें, जितनी टाइट की, उस लैम्डा की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बेस पर आपको स्ट्रक्चर डिटरमिन हो जाएगा क्रिस्टल का, और यहाँ पर एंगल की बेस पे होगा. लाइट की एक्स से आप सिर्फ एक मोनोक्रोमेटिक यूज करेंगे और यहाँ पे एंगल को वेरी करेंगे और ये हो जाएगा. तीसरा इसमें पाउडर मेथड में क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैटिस. यहाँ पे लैटिस पॉइंट को आप देखते हैं, इसका नाम है डी बाय शरर मेथड. पाउडर मेथड का आगे हम आएंगे, इसको देखेंगे. इसका नाम खास तौर पे डी बाय शरर मेथड. तो लैटिस पैरामीटर्स यहाँ पे यूज करते हैं. पॉली क्रिस्टल्स होंगी, एक क्रिस्टल नहीं है क्योंकि पाउडर है, तो पाउडर के अंदर बहुत सारे क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर हो सकते हैं. ठीक है, तो पॉली क्रिस्टल्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है और वेरिएबल एंगल होंगे, और उसकी काफ़ी एंगल जो है वो बहुत सारी ओरिएंटेशन उसकी यूज होगी क्योंकि पाउडर है. पाउडर के अंदर क्रिस्टल एक नहीं होगा बल्कि डिफरेंट साइज के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, तो हम अब बारी बारी इनको थोड़ा देखते हैं. एक्सरे पाउडर मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज डी बाय शरर मेथड. इसको मैं बहुत तेजी से जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है, इसमें थोड़ा प्रिंसिपल है. इसको आप, मैं फिगर से इसको ज़्यादा शो करूँगी. ठीक है, बाकी चीज़ें ऊपर दी हुई हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. तो ये आपके पास डायग्राम है डी बाय पाउडर मेथड. पाउडर मेथड में द सैंपल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. यू कैन सी ओवर हियर ऑन द सरफेस द पाउडर इज देयर and the light X-ray tube is there from which the X-rays are coming. They are falling on the powder, making an angle theta with the base of the powder, and they are reflecting, they are coming out or diffracted going to detector. ठीक है, आगे ये तो आपका पाउडर हो गया, नीचे पाउडर, सैंपल पाउडर, और ये लाइट फॉल हो रही है इसके पास एक्सरेस, और एक्सरे फिर निकल के डायफ्रैक्ट होके डिटेक्टर में जा रही है. ठीक है, और डिटेक्टर के साथ ही आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन में यही चीज़ें होती हैं. इसमें आप सिंपल यही बता सकते हैं कि एक आउटपुट है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सब चीज़ें नजर आ रही हैं. ठीक है, उस पर आपको पिक्चर नजर आ रही है, उसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है, और पहले आप स्क्रीन पे उसको देख रहे होते हैं. ठीक है, तो इन दिस मेथड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डू दिस इज एन एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्टोमीटर. The instrument name is X-ray powder diffractometer. ये पूरा जो है सेटअप ये X-ray powder diffractometer कहलाता है. ठीक है, इसकी डिटेल हमने कर ली है. Now here the important point is, because this is a powder and it contains the crystals of more than one sizes. Many crystals are there of different sizes, so the angle is not fixed over there. So here the angular angle is taken into consideration from 0 to 90 degree. यानी आप 0 to 90 degree angles को यहाँ पे consider करेंगे, और by rotating this X-ray tube, the angles are set in such a way
that the outcoming rays they make an angle theta with the base equivalent to the theta इंसिडेंट थीटा, यानी जो इंसिडेंट थीटा है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे इसका एंगल बनना चाहिए, तभी ब्रैग लॉ जो है इस पे अप्लाई हो सकेगा। ठीक है। अ पाउडर्ड सैंपल mineral sample is placed on a sample stage so that it can be irradiated by the X-ray tube to detect the diffracted X-rays, and electronic detectors is placed on the other side of the sample from the X-ray tube, and it too is allowed to rotate to produce angles from 0 to 90 degree। ठीक है, यही मैंने आपको वर्बली में बताया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि 0 to 90 डिग्री पर वो रोटेट करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एंगल आप यूज कर रहे हैं 0 to 90, it means some more instrument should be there so that it can detect the angle. So to determine the angle, here one more component is used, that is known as goniometer. Goniometer. ठीक है, the instrument used to rotate both the X-ray tube and the detector is called the goniometer। यानी कि वो at the same time यहाँ पे दो goniometer लगा होगा और ये इस आर्म को भी रोटेट करेगा, डिटेक्टर वाले को भी, और एक्स-रे ट्यूब को भी रोटेट करेगा, ताकि उसका जो एंगल थीटा है वो आपका रिक्वायर्ड मिल जाए आपको। ठीक है, ये यहाँ पे आगे डायग्राम बनी हुई है, ये क्रिस्टल की बनी हुई है, हम तो पाउडर की बात करते हैं, ये क्रिस्टल, यहाँ क्रिस्टल की मेथड की है। ठीक है, तो एक बस दिखाने के लिए कि ये गोनीमीटर होता क्या है। दिस इज द गोनीमीटर, डी शेप आपके पास है, आप जो एंगल से मेजर करते हैं, और इट इज रोटेटेबल, यानी ये रोटेट कर रहा है दोनों एंगल्स को, और जो एंगल बन रहे हैं रेस के साथ वो डिटेक्टर्स के अंदर आता चला जा रहा है, जो एंगल बन रहे हैं एक्स-रेस के साथ वो आता चला जा रहा है। दिस इज नोन एज गोनियोमीटर। The goniometer keeps track of the angle theta and sends this information to a computer। मैं कहना कि उसके साथ ही डिटेक्टर भी लगा रहा है, डिटेक्टर भी मूव कर रहा है और एक्सरे मशीन भी मूव कर रही है, यानी एक्सरे जो जहाँ से आ रही है वो भी मूव कर रही है। तो जो जो आपका थीटा आइडेंटिफाई होता चला जाता है वो डायरेक्टली डिटेक्टर उसको स्क्रीन पर मॉनिटर करता चला जाता है, उस पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है, आफ्टर स्कैन of the sample, the X-ray intensity can be plotted against the angle theta, usually reported as 2 theta, because of the way older diffractometers were made to produce a chart like the one shown here। ठीक है, ये इस तरह का चार्ट मिल जाता है क्योंकि डिफरेंट एंगल्स वहाँ पे मौजूद हैं, और जैसे जो एंगल चला आता है उसको 2 थीटा की फॉर्म में, क्योंकि ये इनबिल्ट मशीन होती है जिसमें डायफ्रैक्टोमीटर जो यूज हुआ है वो आपका ब्रैग्स लॉ पे बना हुआ है, ब्रैग्स लॉ का, यानी जो थीटा आएगा उसका वो डबल थीटा करके शो करेगा, राइट, क्योंकि आपके पास ब्रैग लॉ है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 थीटा उसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड करता चला जाएगा। The angle 2 theta for each diffraction peak can then be converted to d spacing using the Bragg equation। So once you determine the theta by putting in the equation of the Bragg's law, the d spacing can be determined। ठीक है जी, आ रहे समझ में? Yes, अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, one can then work on the crystal structure and associate each of the diffraction peaks with a different atomic plane in terms of the Miller indices। ठीक है, मिलर इंडेक्स कौन से हैं फॉर द प्लेन, फॉर दैट प्लेन, ये HKL, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई क्यूब बनाते हैं तो ABC आता है ना, ये XYZ 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है, तो आपके पास जो प्लेन होंगे वो कौन कौन से होंगे, क्यूब की एग्जांपल ले लें तो प्लेन कौन कौन से होंगे, एक आपका y एक्सिस पे हो गया A, नीचे आपका x एक्सिस पे हो गया B, और जो बीच में जा रहा है आपका जो लेंगे 3 डायमेंशनल मॉडल आप ले रहे हैं तो क्यूब का, तो उसका जो B है वो C पार्ट होगा, यानी C प्लेन, C फेज होगा, 3 हिस्से हो गए ना, क्यूब के 3 प्लेन हो गए, एक आपका हाइट, ब्रेड्थ, लेंथ, सही है ना। तो ये जो इसको डिटरमिन किया है ये कहलाते हैं मिलर इंडेक्स ऑफ द प्लेन, डिनोटेड बाय HKL। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रुप, ये मैंने हाईलाइट भी किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ये क्या चीजें हैं। A group known as the Joint Committee on Powder Diffraction Standards
JCPDS, has collected data such as this on thousands of crystalline substances. ये आपके पास डेटा सारे मौजूद हैं, जितने भी नोन सब्सटेंसेस हैं उनका डेटा आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। जो डेटा मौजूद है और ये इस और हर डेटा को स्टोर करने की, चाहे वो NMR का डेटा हो या आपका मास का डेटा हो या आपकी जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे डेटा जो हैं वो सारे कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं और वो नेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे होते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर, और वही आप वहीं से पिक करते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं, तो वो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं उस डेटा का, ठीक है, यानी कि ऑथेंटिक सोर्स है। जैसे आपकी ये जो आप यूज करते हैं ना इसकी फार्माकोपिया, तो फार्माकोपिया इज द ऑथेंटिक सोर्स फॉर द केमिकल सब्सटेंसेस एंड द ड्रग्स, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए भी आपके ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। तो इनके लिए जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का डेटा का ऑथेंटिक सोर्स है JCPDS, ठीक है। और ये आपके उस फाइल में मौजूद है। सिंस एवरी कंपाउंड विद द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल प्रोड्यूस एन आइडेंटिकल पाउडर डाइफ्रेक्शन पैटर्न, द पैटर्न सर्व्स एज अ काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर द सब्सटेंस। गेटिंग माय पॉइंट? फिंगरप्रिंट आपने पहले भी देखा है, किस जगह पे ज्यादा कॉमन था ये, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में? फिंगरप्रिंट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR में, वेरी गुड, उसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं ना। इससे कि जो पीक्स आ रही है वहां पे वो अपने पर्टिकुलर एरिया में आ रही हैं नोन सब्सटेंसेस की, यानी एक दफा आपने उसको डिटरमिन कर लिया, उसको ऑथेंटिकेट कर लिया, अब वो फॉर एवर आपके लिए रेफरेंस बन गए, तो वो रेफरेंस है आपके लिए, आपने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जितने भी नोन सब्सटेंसेस के हैं उनका डेटा वहाँ पे मौजूद है, उनके रेफरेंसेस वहाँ पे मौजूद है और वो आपको एज अ रेफरेंस सर्व करते हैं, तो रेफरेंस के तौर पे, एंड दैट इज नोन एज फिंगरप्रिंट फॉर द सब्सटेंसेस, एंड दस comparing an unknown mineral to those in the powder diffraction file enables easy identification of the unknown. We will see how this is done in our laboratory demonstration. ये तो आपका जो, अगर आपने unknown को कंपेयर कर लिया उससे अपने डेटा को, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, लेकिन अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन आप लैब के अंदर कैसे करेंगे, ठीक है ना। यानी लैब में आपने एक्सरे आपने प्रोड्यूस किया और फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये बॉडी पार्ट्स की बात नहीं, डायग्नोस्टिक की बात नहीं हो रही है, साइंटिफिक एप्लीकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे मॉलिक्यूल और एटम्स के स्ट्रक्चर डिटरमिन किए जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है नोन कंपाउंड्स के तो मौजूद है। अगर आपका अननोन कंपाउंड है तो आप उसका एक्सरे लेकर और आप उसको कंपेयर करें उससे, तो आपको लोकेट करने में आसानी होगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने IR में किया था, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर, ये इंस्पेक्टर से आप उसको सिर्फ मैच करते हैं, तो मैचिंग के बाद जो मैचिंग पॉइंट्स होते हैं वो नोन पे जाते हैं और जो मैच नहीं होते वो आपके अननोन सब्सटेंस के हैं, और फिर आप उसकी तरह उसको डिटरमिन कर लेते हैं कि अननोन का ये स्ट्रक्चर होगा, राइट। नेक्स्ट लॉ मेथड पे आ जाते हैं। लॉ मेथड, a method of X-ray diffraction in the analysis of crystal structure used a single fixed crystal irradiated by a beam of a continuous spectrum of X-ray. The spots are produced known as law spots. अच्छा, पिछले वाले उसमें जो एक्सरे पाउडर मेथड था, G. by Scherrer मेथड, क्योंकि ये साइंटिस्ट G. by Scherrer ने प्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए पाउडर को यूज करके उसने इन्वेस्टिगेट किया था, that is why it is known as G. by Scherrer method, ठीक है। In law method, here a single crystal was used by the law and different spectrum of continuous spectrum was used. अच्छा, मुझे याद आ गया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमने बात की थी, जब एक्स से प्रोड्यूस होती है तो वो दो तरह से होती है, K अल्फा एंड K बीटा, रिमेम्बर, याद है? याद है K अल्फा एंड K बीटा। तो उसमें फिर हमने जिक्र किया था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो जो आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड था, K अल्फा वाला पोर्शन जहाँ पे ब्रॉड अल्फा को उसने ब्रॉड लैम्डा को कवर किया हुआ था, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, वो आपका व्हाइट लाइट भी मैंने आपसे कहा था कि वो व्हाइट लाइट है, तो वो आपका जी वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे बिल्कुल लैम्डा जो है बहुत कंसाइज है, पीक आपकी बहुत शार्प है, K अल्फा दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पीक, ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक पीक की बात कर रहे हैं, तो हमें हर सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक पीक चाहिए जो कि उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है।
That characteristic peak is the identification mark of that substance or the atom or molecule, right? So here in this case, the crystals are taken. The spots are known as, it will produce the spots on the photographic plate, and these spots are in a particular design, in a particular pattern. You can see the spots over here. एक particular pattern में है. देखिए यहाँ पे crystalline structure लिया हुआ है, बीच में crystal है, ठीक है, और crystal जो है वो hexagonal है, हेक्सागोनल क्रिस्टल ली गई है. तो हेक्सागोनल क्रिस्टल नहीं ली गई है, क्रिस्टल तो थी यहाँ पे, ये तो यहाँ पे शो की गई है ना. तो ये क्रिस्टल जब ली उन्होंने तो इसके स्पॉट्स इसके ऊपर आए, और ये स्पॉट जो थे वो बिल्कुल उसी पैटर्न के थे जो क्रिस्टल थे, ठीक है. इन क्रिस्टल्स को, इन स्पॉट्स को मिलाएं तो आपके पास क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आ जाएगा. अब आप यहाँ पे ट्यूब देख सकते हैं एक्सरे लॉ मेथड के अंदर कि पूरा ये एक्सरे आपके पास जो है एक्सरे है. उसके बाद ये एक्सरे बीम वहाँ से गुजर रही है, स्लिट, क्योंकि यहाँ एक सीरीज ऑफ लाइट उन्होंने पूरी लाइट यूज की है, और वहाँ पे स्लिट देनी जरूरी है ताकि आपकी बीम ऑफ लाइट वहाँ से निकले, एक्सरे की जो बीम आ रही है वो जाए और वो उस क्रिस्टल पे फॉल करे, और फॉल करने के बाद वो डायफ्रैक्ट हो जाए और उसके इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर अपने मार्क छोड़ दे. तो जो मार्क उसने पर्टिकुलर डिजाइन में छोड़े हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पूरा सामने आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे ये तो इसका आपके पास लॉ मेथड आ जाता है. लॉ मेथड के अंदर सिंगल क्रिस्टल से यूज की है. अच्छा, लॉ इक्वेशन एंड इट्स रिलेशन विद ब्रैग्स लॉ. रिलेशन तो हम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ लॉ मेथड में देख रहे हैं कि लॉ ने जब ये डिस्कवरी की तो उसको फिर नोबेल प्राइज 1940 में मिला था इस डायफ्रैक्शन फिनोमेना पे, जो एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का उसने डायफ्रैक्शन किया था, ठीक है. तो उसको इसके नोबेल प्राइज 1940 में मिला था. तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ इक्वेशन क्या है? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ लॉ इक्वेशन सिंपल ही है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ मैंने आपको एक ये लिंक दिया हुआ है क्योंकि वो इक्वेशन बहुत बड़ी बड़ी थी और मुझे इस पे हो नहीं रही थी, और उसका लिंक मैं दे दिया. आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपको पूरा इक्वेशन सारी नजर आ जाएगी, ठीक है. तो उसमें HKLM जो है वो इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब कर लेते हैं. इसको खोलकर आप देख लीजिएगा पूरे लिंक को, ठीक, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है. लॉ इक्वेशन इन 3 डायमेंशन. जो मैं बात कर रही थी यूनिट सेल की कि ABC, तो जो इक्वेशन फॉर्म होती है, मैं इसको कंसाइज किया, मैं डिटेल में नहीं गई हूँ, तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है. सब ये देखिए कि जो इसके 3 प्लेन हैं A, B और C, उस पर बेस करते हुए आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पर. यानी हमने ब्रैग में सिर्फ एक इक्वेशन ली थी n लैम्डा इक्वल टू पूरी साइन थीटा, लेकिन लॉग इक्वेशन में हम 3 इक्वेशन ले रहे हैं लॉ फॉर्मूले में, जिसमें आप 3 इक्वेशन को लेंगे, उससे आपका पूरा यूनिट सेल स्ट्रक्चर डिटरमिन हो जाएगा. ब्रैग इक्वेशन से आपने स्पेसिंग बिटवीन द एटम मालूम की थी, और इस इक्वेशन से आप पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगा. तो इसलिए 3 इक्वेशन यहाँ पे काम करेंगी, A B C, ठीक है. तो वी हैव इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन्स ABC. ये आपके पास एंड पे मैं आ रही हूँ H लैम्डा डिनोटेड बाय H लैम्डा, ठीक है. और दूसरे फेज के साथ आप जाएंगे तो K लैम्डा, और तीसरे फेज के साथ जाएंगे तो वो हो जाएगी L लैम्डा, ठीक है. तो HKL एक्चुअली ये डेरिवेशन बहुत जगह नहीं मिल रही थी मुझे, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से बहुत पुरानी किताब से डिराइव किया था, लाइब्रेरी बैठ के. वो बुक मेरी वहाँ किसी ने ली है ऑफिस के अंदर, मैं गई भी थी ऑफिस, मुझे मिली नहीं. ये डेरिवेशन मुझे कहीं मिल नहीं रही थी ना, बहुत सिंपल फॉर्म में, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है इसकी. तो मैं सोचा कि आपको सब इतना ही बता दूं कि HKL है. कभी मौका मिला तो जरूर वो वाली मुझे मिल जाएगी चीज़, तो मैं आपको डेरिवेशन उसकी दिखा दूंगी. क्योंकि यहाँ पे जब आपने वहाँ पे साइन थीटा लिया था, यहाँ आपने कॉस थीटा लिया है. क्यों कॉस थीटा लिया है? कि आपने जो रिफ्रैक्टेड रेज ली है ना, जो प्लेन के साथ बैक हो रही है, वो परपेंडिकुलर के साथ कॉस थीटा बना रही है. यहाँ पे कॉस थीटा को कंसिडर किया है और वहां पे साइन थीटा को किया है. जी कुछ कह रही हैं आप? ये आप देखें कॉस थीटा बना ना, A कॉस थीटा, ये पूरी ये बन जाएगा. हाँ, जो पैरामीटर्स आपने लिए ABC जो प्लेन्स हैं, और उसके बाद साथ आपने जो प्लेन को परपेंडिकुलर के साथ जब इक्वेशन बनाई तो वो आ रहा था A cos थीटा, B cos थीटा और C cos थीटा.
ये उसकी पूरी डेरिवेशंस बनी हुई है। ये डेरिवेशन अभी इस वक्त नहीं है और मुझे मिली भी नहीं, जब भी मिलेंगी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आप इसको सिर्फ इतना याद रखिए कि जो आप प्लेन के साथ जो बना रहे हैं ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा, वो दैट इज इक्विवेलेंट टू एच लैम्डा, के लैम्डा और एल लैम्डा। इतना ही काफी है, ठीक है। जहाँ पे वेयर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे वेयर कॉस ए 0 कॉस are the direction cosines of the incident ray and cos A n cos A n cos B n cos B n cos M, ये सारे जो हैं they are the direction cosines of the reflected ray in the crystal axis. So we must also satisfy all this equation in the form of gamma 0 is equal to 1, gamma lambda is equal to 1, यानी एक एक आपने इसको लिया है और उनको कंबाइन करेंगे तो HKL बनेगा। बस मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ इसके अंदर, क्योंकि बाकी मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन पे आ जाए, A1 A2 A3। अगर इसकी डेरिवेशन कहीं आपको मिल जाती है तो आप उसको जरूर देखें, मुझसे भी शेयर कर लें, और मैंने भी बहुत देखने की कोशिश की, मिली नहीं मिली। द three law conditions for the scattering vector or the law equations for integer values of a reflections reciprocal lattice indices HKL can be also be written as follows। तो ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ना, ये वाली, इसको आप ज्यादा फोकस करें, यानी कि AL आपके पास आ रही है डेल्टा के इक्विवेलेंट टू 2 पाई H, ऊपर हमने कहा था HKL, तो HKL के साथ जब आप इसकी पूरी डेरिवेशन करेंगे तो ये आपके पास डेल्टा K आ रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई H। इस तरीके से A2 जो है वो इक्विवेलेंट है 2 पाई K और A3 इक्विवेलेंट है 2 पाई L। तो these are three well known equation by the help of which we can determine the crystalline structure in its full strength। तो पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप मालूम कर सकते हैं, जितने भी आप उसके वो क्यूबिक फॉर्म में है, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म है, उससे मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ब्रैग इक्वेशन है वो आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बता पा रही, प्लेन नहीं बता रही है, वो सिर्फ आपको स्पेसिंग बता रही है कि व्हाट इज द स्पेस बिटवीन द एटम्स और सरफेस में क्या स्पेस है, तो स्पेस बता रही है। यहाँ पे उसका पूरा उसकी जो प्लेन्स हैं वो बता रही है लॉ इक्वेशन। तो these conditions say that the scattering vector must be oriented in a specific direction in relation to the primitive vectors of the crystal lattice। तो आपने यहाँ पे जो क्रिस्टल लेटिस पे फॉल की थी एक्स-रे, उसका जो वेक्टर उसमें लिया है वो इस तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपके पास ये इक्वेशन 2 पाई H, 2 पाई K और 2 पाई L की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो पूरी इसकी डेरिवेशन है। In crystallography, the law equations give three conditions for incident waves to be diffracted by a crystal lattice। ये तीन आपको उससे डायफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। इसको मैं यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि इतना ही काफी आपके लिए जानना। और जब कभी क्रिस्टलोग्राफी की आप सिंथेसिस में आएंगे एमफिल लेवल पर और क्रिस्टलोग्राफी की जरूरत पड़ी, अगर आपने सिंथेटिक केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे फिर आप इसको डिटेल से पढ़ के अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स आपने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और जो आपके बेसिस में होने चाहिए कि एक्सरे होती क्या है और क्रिस्टलोग्राफी हम कैसे करते हैं, तो ये चीज़ आपने इस चैप्टर में कवर कर ली है। और आई थिंक ये हमने ख़त्म ही कर लिया है। एट द एंड व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन, आपको क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर से मालूम होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं। व्हाट आर एक्स-रेज एंड हाउ दे आर जनरेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। एट द एंड पे जाइए, यस, ठीक है। व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन, क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर एक्स-रेज, अच्छी तरह आपने पढ़ ली है, इसको कैसे प्रोड्यूस होती है ये पढ़ लिया आपने। एक्सरे ट्यूब क्या होती है, वो उसी में जनरेट हो रही है एक्सरे, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, इससे कि व्हेन वी स्टडी द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दीज टू interferences must be known very clearly। What is Bragg's law and how can it be used to identify minerals, ठीक है। Bragg's law हमने किया, हम कैसे मालूम कर सकते हैं उसको, ठीक। What is गोनियोमीटर, गोनियोमीटर भी आपने पढ़ा। सिंपल सी डायग्राम है, ये सिंपल डी है जिसके ऊपर एंगल्स बने हुए हैं। एंगल आप पहले भी करते रहे ज्योमेट्री के अंदर, एक डी की मदद से आपने एंगल किया, क्योंकि 0 to 90 डिग्री आपने यहाँ पे एंगल पर उसको घुमाना है, एक्स-रे ट्यूब को और अपने डिटेक्टर को। तो वहाँ पे गोनियोमीटर जो है वो उस एंगल को आइडेंटिफाई करता है और डायरेक्टली वो उसमें
डिटेक्टर में इनकॉर्पोरेट करता जाता है। ठीक है। हाउ डू लॉ मेथड इज हेल्पफुल इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल। किस तरह से ये मेथड यूजफुल है? दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल. There are 3 planes and 3 equations are there which determine the size of the plane of the crystal and their size मालूम करता है। ठीक है ना, यानी कितने वो साइज का है, कितने उसकी क्रिस्टलाइन शेप्स हैं और कितने यानी कितने प्लेन्स उसके अंदर मौजूद है, उनकी साइजेस क्या क्या है, उनके दरमियान एंगल क्या है। तो ये जब चीज डिटरमिन हो जाएगी तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आपका डिटरमिन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ HKL। ठीक है, चलिए जी एंड करते हैं यहाँ पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल अरेंज वन मोर क्लास ऑन द डिस्कशन। ये अभी आप 2-3 दिन का टाइम ले लें ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो फिर आप एक डिस्कशन मोड में लेके जाएं उसको। मैं नहीं बोलूंगी और आपने बोलना है। ठीक है जी। इस वक्त अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड एट द मोमेंट प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जी कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम अभी तो नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, 2 ही बातें होती हैं, या तो सब सर से गुजर गया है या सब कुछ समझ में आ नहीं गया मैम है। समझ में तो आया, कौन सी लेकिन कैटेगरी में दूं एक आपको दफा इस गो वक्त? थ्रू करेंगे तो फिर आपसे पूछ लेंगे अगर कुछ ना समझ में आया तो। ठीक है, जितना आपने भी पढ़ा वो समझ में आ गया। अब इस पे हम नेक्स्ट एक सेशन रखेंगे डिस्कशन का इसी पर। ठीक है, तो ये काम आफ्टर प्रिपरेशन पढ़कर आइएगा। बगैर पढ़े आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता उसमें। तो पढ़कर आए और रेलेवेंट चीजें भी देख लें कि जो आपके पिछले, क्योंकि एक तरह से ये खत्म हो गया आपका। अब डॉक्टर आयशा से कोऑर्डिनेट करेंगे कि उनका क्या रहता है, वो क्या करना चाहती हैं, आप हो गए हैं सारे। अगर कोई बाकी है या डिस्कशन रखना चाहते हैं तो हम एक डिस्कशन क्लास रख लेंगे। पहले तो एक क्लास हम इस पर रखेंगे, इस वाले एक्स पर, कि जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाए हैं वो उसमें आ जाए और पढ़कर आए। लेकिन पढ़कर आए तो उस पर हम क्वेश्चंस पुट अप कर लेंगे और ये चीज़ें आपको गो थ्रू आपने करनी है ताकि क्वेश्चन जनरेट कर सकें। उसके बाद फिर एक अगर जरूरत हुई तो हम एक और जनरल क्लास ओवरऑल रख लेंगे जिसमें आपकी क्यूरीज हो सकती हैं, कुछ भी जो आप पूछना चाहें, और पेपर पैटर्न वगैरह आपको बता देंगे। पेपर पैटर्न तो वही है जो पहले भी आप एग्जाम से गुजर चुके हैं कि आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, थोड़ा ऑनलाइन होगा वो, बाकी रिटन हैंड रिटन पेपर होगा जैसे लास्ट टाइम आपने किया था ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। लेकिन उसमें सिर्फ एमसीक्यूज पार्ट कंप्यूटर बेस्ड है, बाकी तो आपने कॉपी के ऊपर राइटअप ही किया था, तो वैसे ही होगा पेपर। ठीक है, ठीक है मैम। इसमें 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होगा जो कि हम उसको मिड टर्म का भी नाम दे सकते हैं कि मिड टर्म पोर्शन, मिड टर्म आपका नहीं हुआ है तो हम कंबाइंड पेपर करें तो उसको मिड टर्म और टर्मिनल के नाम से करेंगे। 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा रिटर्न और 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट और क्विज है। ठीक है, क्विज और असाइनमेंट, और आपको जितने भी क्विज हैं उनके बेस्ट मार्क्स हम शामिल करेंगे उसके अंदर। तो ये आपको ओवरऑल इवेल्यूशन होगी इंटरनल क्विजेज और असाइनमेंट की फॉर्म में, और बाकी आपका पेपर होगा। और अब आप पढ़ कर आइएगा ताकि क्वेश्चंस आप करें और आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो हम उसको एंटरटेन कर लें और आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ अभी हम उसमें कर रहे थे, क्वेश्चन आपने नहीं किया, लेकिन वो जो कल हम कैथोड और एनोड में फंसते थे तो उसमें यही था जो लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैथोड एनोड तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है ना, जब आप कोई इलेक्ट्रिक जो सर्किट बनाते हैं तो एक एंड उसका कैथोड और एक एनोड होता है, राइट, ताकि सर्किट यहाँ पे भी बनता है और उसमें कैथोड एनोड। सेल की एग्जांपल मैंने दी थी आपसे कि एक ही सेल के अंदर आपका कैथोड और एनोड दोनों पार्ट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और एक से ज्यादा सेल यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समटाइम एक ही सेल यूज होता है और समटाइम एक से ज्यादा सेल यूज होते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी यही चीज थी कि जो उसका टंगस्टन फिलामेंट था वो उसका एनोड पार्ट था और जो उसका दूसरा एंड था मेटल का वो उसका कैथोड पार्ट था। और कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है और एनोड पर पॉजिटिव साइन होता है, तो ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है, जब भी आप कभी ज्वाइन करेंगे हम सेल जो लगा रहे होते हैं वो ये नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रॉन पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो आगे उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये था उसके अंदर ये चीज़। और फिर और भी देखिए किताबें नेट पे भी देखिए, काफ़ी मटेरियल है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिंपल डायग्राम है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी जिसमें बहुत सारे सेल यूज़ किए गए हैं, कैथोड एनोड की एक पूरी सीरीज यूज की गई है। और ये आप डिटेक्टर में भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे आप डायनोड यूज कर रहे होते हैं, याद है कुछ ना इंस्ट्रूमेंटेशन में यूवी विजिबल के Yes, ma'am. डायनोड यूज करते हैं डिटेक्टर में,
तो ये वही चीज़ है कि आप जो बहुत सारे एनोड कैथोड यूज़ करते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो आपका जो स्मॉलेस्ट चीज़ है किसी भी सब्सटेंस की डिटर्मिनेशन में, वो भी डिटर्मिन हो जाती है। तो इसमें से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी आपने टेंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का लफ्ज़ सुना होगा कि वहाँ पे एक से ज़्यादा डिटेक्टर यूज़ होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिटेक्टर यूज़ हो रहे हों तो उसको टेंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की है कि बहुत यही काम आती हैं आगे। ठीक है, क्योंकि टिपिकल पॉइंट्स ये होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन तो होगी बेसिक, लेकिन अब आगे उसमें कितनी उसके अंदर कितनी इन्वेंशन आ रही हैं, उसमें कितनी प्रोग्रेस आ रही है, ये देखने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमने एक्सरे में देखा कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी रेनबो से और कहाँ पे जाके एंड हुई है। आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट उसको किस लेवल तक ले जाके स्कैनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन है। चीज़ें तो बहुत पहले बन चुकी हैं, लेकिन विद टाइम उनमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, डायग्नोस्टिक बहुत इम्प्रूव हो गई है, ट्रीटमेंट बहुत इम्प्रूव हो गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो एज अ साइंटिस्ट आपका भी काम है कि सोचें और आप देखें कि कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है जी, हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। Okay, thank you so much, and thank you, Fatma, for arranging this class. कोई ठीक है, बात नहीं। अब नेक्स्ट क्लास कौन अरेंज करेगा ये भी आप डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा। आपस में आप लोग ठीक का है मैम, कोऑर्डिनेशन ठीक होना चाहिए। ठीक है, और ये आफ्टर ठीक 2 और 3 डेज बाद रखिएगा ताकि आप पढ़ लें इसको प्रॉपरली और हम जितने भी क्वेश्चन अपनी क्लास में कर लें। ठीक है, चलो ठीक जी, है मैम, थैंक नो यू, इशू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, जी मैम, अल्लाह अल्लाह आप हाफिज। ये हाफिज़। कल का और आज का वीडियो आप LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। बेटी आपकी आवाज़ तो बहुत ब्रेक हो रही, क्या बताऊँ कल का और आज का? मैम मैम वीडियो लेक्चर जो कह है रही है 2 कि सेशन। अपलोड कर देगा एलएमएस पे। LMS पे ये हुआ हुआ है, एक्सरे पड़ी हुई है वहीं पे LMS पे। नहीं नहीं मैम, ये वीडियो सेशन जो हमारा लाइव सेशन है ना, अच्छा, ये ये कह रही वाला, है वो। अच्छा ठीक है, हाँ ये डलेगा। ये मैं इसकी भी क्वालिटी चेक कर लूँ ना ज़रा, जी जी। उसके बाद मैं इसको डालूंगी। ठीक है जी, डल जाएगा। ओके, थैंक ओके यू, मैम, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।